کارگل کے حالات بتدریج خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف سے ہمارے مجاہدین بھائیوں نے بھارتی فوجیوں پر دباؤ ڈال رکھا ہے۔ وہ موقع ملتے ہی بھارتی فوجی چوکیوں پر حملے کر کے یا تو انہیں تباہ کر رہے ہیں یا بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دوسری طرف سے کنٹرول لائن کے اس پار سے پاکستانی فوج بھارتیوں پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ کارگل میں بھارتی فوج اندھا دھند گولہ بارود استعمال کر رہی ہے۔ اس طرح انہیں کچھ دشواریاں بھی پیش آ رہی ہیں۔ سری نگر ہائی کمان نے فوری طور پر گولہ بارود کی ایک باریک کھیپ کارگل پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ کچھ گولہ بارود تو ہوائی جہاز کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے اور کچھ ٹرکوں کے ذریعے بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلا قافلہ ٹھیک ایک ہفتے بعد آج ہی کے دن صبح سویرے سری نگر سے روانہ ہوگا۔ اس طرح گولہ بارود سے لدا ہوا یہ قافلہ 52 میل کا فاصلہ طے کر کے صبح 9 بجے کے قریب سونا مارگ پہنچے گا۔ فاصلہ اگرچہ زیادہ نہیں مگر راستہ نہایت خطرناک حد تک پرپیچ ہونے کی وجہ سے قافلے کی رفتار زیادہ تیز نہیں ہوگی۔ اس طرح اس قافلے کو 52 میل کا فاصلہ طے کرنے میں 3 گھنٹے لگیں گے۔ میری اطلاع کے مطابق سری نگر سے سونا مارگ تک جہاں راستہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور مجاہدین کے حملے کا خطرہ ہے، وہاں قافلے کی حفاظت کے خیال سے ایک دن پہلے عارضی فوجی چوکیاں قائم کر دی جائیں گی۔ سونا مارگ سے آگے کچھ علاقہ ایسا ہے جہاں حفاظتی چوکیاں نہیں ہیں۔ وہ خاموش ہو کر باری باری ہماری طرف دیکھنے لگا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، ہمارے پاس 2 آپشن ہیں۔ ایک تو یہ کہ سونا مارگ سے ٹھیک 3 میل آگے ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم اپنے مورچے قائم کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم دریا کے راستے اور ناتھ کے غاروں کی طرف اور وہاں سے پہلگام کی طرف نکل سکتے ہیں۔ یا پھر وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ ہم سب کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، یا پھر درہ زوجیلا یا اس سے چند میل پہلے بیتال کے مقام پر بھی ہم اس قافلے کو اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بیتال سے بھی ہمیں پہلگام کی طرف نکلنے کا راستہ مل سکتا ہے۔ اب یہ طے کرنا ہے کہ اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے کس جگہ کا انتخاب کیا جائے۔ 30 ٹرک اور 4 جیپیں۔ میں نے کمانڈر محب اللہ کے خاموش ہونے پر کہا، بہت بڑا قافلہ ہوگا۔ ہمارے گروپ میں کتنے آدمی شامل ہوں گے؟ تقریباً 40۔ کمانڈر محب اللہ نے جواب دیا، جس جگہ کا بھی انتخاب کیا جائے گا، ہمارے آدمی سڑک کے دوسری طرف پہاڑیوں سے حملہ آور ہوں گے۔ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم اپنی ساری قوت ایک جگہ پر جمع کرنے کے بجائے اسے ٹکڑیوں میں پھیلا دیں؟ میں نے کہا، میرا مطلب ہے کہ ہم قافلے پر حملے کے لیے جس جگہ کا بھی انتخاب کریں، وہاں ہمارے آدمی چھوٹے چھوٹے گروپوں کی صورت میں دور تک پھیل جائیں تاکہ اس فوجی قافلے کے کسی ایک ٹرک کو بھی وہاں سے نکلنے کا موقع نہ مل سکے۔ کمانڈر محب اللہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے تم سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ وہ بولا، میں تمہاری اس تجویز سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں اور میرے خیال میں اس مقصد کے لیے اب سونا مارگ سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ وہ ایسی جگہ ہے کہ ہمارے آدمی سڑک کے دونوں طرف دور تک بیٹھ سکتے ہیں۔ میں کل ہی تمام آدمیوں کو اطلاع بھجوا دیتا ہوں۔ وہ لوگ ایک دن پہلے سونا مارگ میں جمع ہو جائیں گے۔ کمانڈر رشید اور کمانڈر شہاب الدین اور کمانڈر یاسین بھی اپنے اپنے آدمی لے کر ایک دن پہلے وہاں جمع ہو جائیں گے۔ یہ ایک بڑی کارروائی ہوگی اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اور تجربہ کار آدمیوں کی ضرورت ہوگی۔ لیکن میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، بھارتی فوج کی انٹیلیجنس بھی تو غافل نہیں ہوگی۔ وہ پورے علاقے پر نگاہ رکھیں گے۔ وہ ہر اجنبی پر شک کریں گے۔ ہو سکتا ہے مشتبہ افراد کو روک کر ان سے کسی قسم کی باز پرس بھی کی جائے۔ ہمارے اتنے سارے آدمی سونا مارگ میں جمع ہوں گے تو انہیں شبہ ہو جائے گا۔ اس کا حل بھی میں نے سوچ لیا ہے، کمانڈر محب اللہ نے کہا۔ سونا مارگ ایک تفریحی مقام ہے۔ وادی کے حالات نہایت خراب ہونے کے باوجود ہندوستان سے لوگ تفریح کے لیے اس طرف بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ سونا مارگ سے آگے چند میل کے فاصلے پر دریا کے قریب امرت ناتھ نام کے وہ تاریخی غار ہیں جو ہندوؤں کے لیے بہت مقدس ہیں۔ یہ غار ہزاروں سال پرانے ہیں۔ ان کے اندر چٹانوں پر قدیم دیویوں اور دیوتاؤں کی مورتیاں تراشی ہوئی ہیں۔ ہندوستان سے آنے والے ہندو ان غاروں کی یاترا کے لیے اس طرف جاتے رہتے ہیں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہمارے چند آدمی ہندو یاتریوں کے بیس میں سونا مارگ جائیں گے اور کچھ شہر سے تقریباً 1 میل دور ایک پہاڑی غار میں چھپے رہیں گے اور وقت مقررہ پر اپنے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ہمارے آدمی آزادی سے اسلحہ تو ساتھ نہیں لے جا سکیں گے۔ میں نے کہا، کسی کو اسلحہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، سب خالی ہاتھ ہوں گے۔ کمانڈر نے جواب دیا، ہر قسم کا اسلحہ ایک رات پہلے اس غار میں پہنچا دیا جائے گا اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہندوستان سے آنے والی ہندو یاتریوں کی ایک پارٹی جس میں سری نگر کے کچھ کشمیری ہندو بھی شامل ہوں گے 2 دن پہلے سری نگر سے سونا مارگ پہنچے گی۔ تم اور انگوری بیس بدل کر اس پارٹی میں شامل ہو سکتے ہو۔
क्या? मैं उछल पड़ा। हाँ, कमांडर मुहिबुल्लाह मुस्कुराया। तुम दोनों हिंदुओं के बेस में आसानी से सोनामार्ग जा सकते हो। वहाँ तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तुम पहले कभी सोनामार्ग गए हो या नहीं? नहीं, मैंने नफी में सर हिलाया। ये छोटा सा शहर है, तुम इसे वादी का खूबसूरत तरीन शहर भी कह सकते हो। कमांडर मुहिबुल्लाह कह रहा था। सतह समंदर से तकरीबन 8,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ इस शहर के एक तरफ दरिया है और दूसरी तरफ सब्जे से ढके हुए पहाड़। यहीं से लद्दाख और कारगिल की तरफ सड़क जाती है। उससे आगे पहाड़ी सिलसिला एकदम बुलंद होता चला गया है। दर्रा जोजिला 11,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। उस दर्रे से आगे लद्दाख का इलाका शुरू हो जाता है, लेकिन दर्रा पार करते ही तुम्हें यूं लगेगा जैसे दूसरी दुनिया में आगे हो। जोजिला तक तो तुम्हें हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आएगा। रंग बिरंगे खुशनुमा फूलों की चादरें बिछी हुई नजर आएंगी, लेकिन दर्रे के उस पार ये सब कुछ अचानक ही खत्म हो जाता है। हर तरफ बेआबो गया और वीरान खाकसरी पहाड़ नजर आएंगे। सब्जे के नाम पर तुम्हें कहीं घास की एक पत्ती तक नजर नहीं आएगी। बहरहाल वो बात करते करते रुक गया, फिर बोला, तुम्हें उस तरफ तो नहीं जाना, तुम्हारी मंजिल सोनामार्ग है। छोटा सा शहर होने के बावजूद सोनामार्ग में सयाहों और हिंदू यात्रियों के लिए रिहाइश की कोई परेशानी नहीं। वहाँ कई गेस्ट हाउसेज हैं, लेकिन तुम लोगों के लिए गेस्ट हाउसेज में कयाम खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पुलिस होटलों और गेस्ट हाउसेज में कयाम करने वालों से पूछगछ करती रहती है। तो फिर हमें कहाँ ठहरना होगा? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। किसी मंदिर में। वहाँ 2-3 मंदिर भी हैं और हिंदू यात्री पैसे बचाने के लिए आमतौर पर मंदिरों ही में ठहरते हैं, लेकिन अंगूरी के साथ किसी मंदिर में रात गुजारना भी तुम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। उसने खामोश होकर अंगूरी की तरफ देखा, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, मंदिरों के पुजारी भारतीय फौजियों और पुलिस से ज्यादा खतरनाक हैं। वो न सिर्फ इंटेलिजेंस वालों के लिए मुखबरी के फराइज अंजाम देते हैं, बल्कि मंदिर में कयाम करने वाली जवान और खूबसूरत औरतों पर हाथ साफ करने से भी बाज नहीं आते। बाज औकात तो वो किसी औरत को इस तरह गायब कर देते हैं कि उसका सुराग भी नहीं मिलता। तो फिर मैंने एक बार फिर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। सोनामार्ग पहुंचते ही तुम प्रीतम सिंह से मुलाकात करोगे, कमांडर मुहिबुल्लाह ने कहा। बाजार में उसकी दूध दही की दुकान है। प्रीतम सिंह अमृतसर का रहने वाला है, लेकिन तकरीबन 15 साल से यहाँ पर है। उसकी दुकान तुम बहुत आसानी से तलाश कर लोगे। रवानगी से पहले मैं शिनाख्त के लिए 1-2 बातें बता दूंगा। तुम दोनों उसके घर पर रहोगे और बाद में तुम्हें उससे मेरा पैगाम भी मिल जाएगा। ठीक है, हमें कब जाना होगा? मैंने पूछा। 2 दिन पहले तुम्हें बता दिया जाएगा, कमांडर ने जवाब दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, मेरा ख्याल है अब तुम लोग सो जाओ। कल सारा दिन सफर में रहे हो और रात भी खत्म होने वाली है। रात खत्म हो चुकी थी। उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। अंगूरी उठकर दूसरे कमरे में चली गई। अब्दुल गफूर अनवर और दूसरे आदमियों को दूसरे कमरे में ले गया। मैं और सईद उस कमरे में रह गए थे। सईद तो जगह मिलते ही लंबा हो गया था और फिर मैंने भी टांगे फैला ली। कुछ ही देर बाद मेरी आंखें बंद होने लगी। हिरासत में लिए जाने वाले लड़कों को पुलिस ने छोड़ दिया था और उन लड़कों की रिहाई की वजह से शहर में सुकून तो हो गया था, मगर पुलिस की सरगर्मियां बढ़ गई थीं। हर शख्स को शक की निगाहों से देखा जा रहा था। कई लोगों को रोककर उनसे पूछताछ की जा रही थी। हमारे दूसरे आदमी तो अगले रोज सुबह ही बाहर जा चुके थे, मगर मुझे और सईद वगैरह को बाहर जाने से रोक दिया गया था। अलबत्ता अंगूरी रेशम की बेटी के साथ आजादी से शहर में घूम फिर रही थी और बिल आखिर वो वक्त आ गया जिसका मुझे इंतजार था। उस रोज दोपहर 2 बजे की बस से हमें रवाना होना था। ये बस श्रीनगर से आने वाली थी और इत्तला के मुताबिक उसमें कम से कम 20 हिंदू यात्री सफर कर रहे थे। उनमें मर्द भी थे, औरतें भी और बच्चे भी। दिन के 11 बजे ही हमारे हुलियत तब्दील कर दिए गए थे। मुझे हिंदू का बेस बदलने के लिए अपने बालों की कुर्बानी देनी पड़ी थी। मेरे सर पर उस्तरा फेर दिया गया, अलबत्ता खोपड़ी पर चिटिया की सूरत में कुछ बाल छोड़ दिए गए। मेरी ये चिटिया भी तकरीबन 5 इंच लंबी थी, जो सर की हरकत के साथ फंदने की तरह झोल रही थी। गिरवे रंग के कपड़े, पैरों में लकड़ी की खड़ाड़ी, गले में मोटे मोटे मोतियों की कई मालाएं और माथे पर दाएं से बाएं कशका। 3 लंबी सफेद लकीरें थी जो ऊपर नीचे खींची गई थी। मेरे एक हाथ में स्टील का एक कड़ा था और लकड़ी का एक त्रिशूल। दोनों गालों पर भी सुर्ख रंग से लकीरें खींच दी गई थी और मजीद सितम यह हुआ कि मेरी बमें भी साफ कर दी गईं। इस हुलिये में मुझे एक मुकम्मल साधु या सवामी बना दिया गया था। मेरे कंधे पर एक मैला सा थैला भी लटका दिया गया जिसमें खाने की कुछ चीजें डाल दी गई थी। अंगूरी का हुलिया भी बदल दिया गया था। माथे पर बिंदिया, कानों में बालियां और नाक में भी चूड़ी के साइज की तार जितनी मोटी एक नथ पहना दी गई थी। हिंदू औरतें अक्सर इस किस्म की बालियां पहनती थीं। उसने बतूल के कपड़े पहन लिए थे।
हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सके थे। गंदरबल में हिंदू घरों की भी कमी नहीं थी, इसलिए हम पर किसी को शुबा नहीं हो सकता था। हम 1 बजे अब्दुल गफूर के घर से निकले। कमांडर मुहिबुल्लाह का एक आदमी हमसे पहले निकल गया था और एक आदमी हमारे बाद घर से बरामद हुआ था। पहला आदमी हमसे तकरीबन 20 गज आगे था। हम उसके पीछे पीछे गलियों में चलते रहे। बाज लोगों ने मुड़कर बड़ी नफरत भरी निगाहों से हमारी तरफ देखा था। एक आदमी ने तो बहुत सख्त किस्म की गाली बकते हुए जुमला भी कसा था। वो गाली सुनकर मेरा खून खोल उठा था, लेकिन मैं सर झुकाए खामोशी से चलता रहा। जाहिर है वो गाली मुझे नहीं दी गई थी। गलियों से निकलकर हम मेन बाजार में आ गए और फिर दूसरी सड़क पर होते हुए लारी अड्डे पर पहुंच गए। अड्डे पर उस वक्त 2 जीपें और एक बस खड़ी थी। एक जीप तो सोनामार्ग की तरफ जाने वाली थी, जबकि दूसरी जीप और बस के सामने श्रीनगर की प्लेट लगी हुई थी। मुसाफिर बर्दारी के लिए कश्मीर के तकरीबन तमाम ही इलाकों में जीपें भी बाकसरत चलती हैं। सोनामार्ग की तरफ जाने वाली बस अभी नहीं आई थी। मैंने इधर उधर देखा। हमारे आगे पीछे आने वाले दोनों आदमी थोड़े थोड़े फासले पर इधर उधर खड़े थे। मैं अंगूरी के साथ एक दरख्त के नीचे रुक गया, जहाँ कुछ और लोग भी खड़े थे और उनमें 3-4 औरतें भी थीं। अंगूरी औरतों के करीब खड़ी हो गई और मैं लोगों से अलग थलग जमीन पर आलती पालती मार कर बैठ गया। हमें तकरीबन आधा घंटा इंतजार करना पड़ा था। 2 बसें एक साथ ही वहां पहुंची थीं। एक बस में तो तमाम हिंदू यात्री भरे हुए थे, उसमें किसी और मुसाफिर की गुंजाइश नहीं थी। अलबत्ता दूसरी बस में कुछ हिंदू यात्री और कुछ कश्मीरी मुसलमान थे। कई सीटें खाली भी पड़ी थीं। स्टॉप पर 12 मुसाफिर थे जिन्हें उस बस में सवार होना था। 3-4 औरतें बस पर सवार हो चुकी, तो मैंने अंगूरी को आगे धकेल दिया और उसके पीछे ही मैं भी हरिओम कहते हुए ऊपर चढ़ गया। अंगूरी को एक औरत ने अपने साथ जगह दे दी। उसकी गोद में एक शीरखार बच्चा भी था। मुझे भी एक हिंदू के साथ ही जगह मिल गई। पहली सीट पर एक सिख जोड़ा भी बैठा हुआ था। मैं यहाँ एक बात बताता चलूं कि श्रीनगर, सोनामार्ग और पहलगाम और कुर्बो जवार के शहरों में सिख भी बड़ी तादाद में आबाद हैं और हिंदू पुलिस और फौज के सूरमा मुसलमानों की तरह वक्तन फवक्तन उन्हें भी तंग करते रहते हैं। हम जितनी देर लारी अड्डे पर खड़े रहे, पुलिस वाले बार बार वहां खड़े हुए या आने जाने वाले लोगों को परेशान करते रहे थे। बस 2:15 बजे रवाना होकर 3 बजे के करीब 18-20 मील के फासले पर कंगन के अड्डे पर रुक गई। दरिया के किनारे पर आबाद ये गांव ज्यादा बड़ा नहीं था। यहाँ 3 मुसाफिर उतरे थे और 2 नए मुसाफिर सवार हुए थे जिन्हें सुंबल जाना था। यहाँ मैं एक और वजाहत करता चलूं कि सुंबल नाम के 2 गांव हैं। एक श्रीनगर के मगरिब में बांदीपुरा जाने वाली शाहरा पर सोनामार्ग से तकरीबन 20 मील पहले है। हमारी बस कंगन से जैसे ही आगे निकली, पीछे से आने वाली एक फौजी जीप ने तेजी से आगे निकलकर रास्ता रोक लिया। बस को रुकना पड़ा। उस जीप पर निस्फ दर्जन फौजी थे। उन्होंने बस को घेरे में ले लिया। एक हवालदार बस में सवार होकर बड़ी कड़ी नजरों से मुसाफिरों का जायजा लेने लगा। उसके हाथ में रिवॉल्वर था और कंधे पर सब मशीन गन भी लटकी हुई थी। वो चंद मिनट वहीं खड़ा लोगों को घूरता रहा, फिर आगे बढ़कर बाज मुसाफिरों से सवालात करने लगा और फिर वो मेरे करीब रुक गया। कहाँ से आए हो स्वामी जी? उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए करख्त लहजे में पूछा। जब उसने बस के दूसरे मुसाफिरों से पूछगछ शुरू की थी तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन अपने करीब आने तक मैं अपनी कैफियत पर मुकम्मल तौर पर काबू पा चुका था। श्रीनगर से जी, मैंने भी उसकी आंखों में झांकते हुए पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। हम 5 साल से हरी पर्वत पर शिवा मंदिर में आने वाले यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? उसने दूसरा सवाल किया। लो देखो, मैंने कहा, इस मूर्ख को ये पता नहीं कि हिंदू यात्री अमरनाथ की तरफ क्यों जाते हैं। हम भी अमरनाथ के गारों की यात्रा को जा रहे हैं महाराज। वो चंद लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर मेरे हाथ से त्रिशूल लेकर उसे इस तरह उठाया जैसे उसके वजन का अंदाजा लगाना चाहता हो। उसने त्रिशूल वापस रख दिया और आगे बढ़ गया। मैं हरिओम का विर्द करने लगा। इस चेकिंग की वजह से बस तकरीबन 15 मिनट तक वहां रुकी रही। उस हवालदार ने ड्राइवर और कंडक्टर से भी कुछ सवालात किए थे। उसे ये भी बताया गया था कि श्रीनगर से आने वाले 3 मुसाफिर कंगन के अड्डे पर उतरे थे। सुंबल और गंदर के आसपास भी बस को रोककर चेक किया गया था। ये बात मैंने खास तौर पर नोट की थी कि उस शाहरा पर फौज की सरगर्मियां कुछ ज्यादा ही थी। इसकी वजह यकीनन ये थी कि 2 दिन बाद यहाँ से ट्रकों का एक बहुत बड़ा काफिला गोला बारूद की बड़ी खेप लेकर गुजरने वाला था। सोनामार्ग का रास्ता वाकई बहुत खतरनाक था। कहीं निहायत तंग मोड़, कहीं खौफनाक गाठियां और कहीं उमूदी ढलान। ड्राइवर की मामूली सी गफलत किसी खौफनाक हादसे का बायस बन सकती थी। इस खतरनाक रास्ते की वजह से बस की रफ्तार भी ज्यादा तेज नहीं थी और फिर रास्ते में जगह जगह चेकिंग भी हो रही थी, जिसमें खासा वक्त जाया हुआ था।
इस तरह बस 6 बजे के करीब सोनम मार्ग पहुंची थी। हिंदू यात्रियों की दूसरी बस हमसे चंद मिनट पहले वहां पहुंच चुकी थी। सोनम मार्ग बहुत छोटा सा शहर है। अड्डे पर गेस्ट हाउसेज और होटलों के एजेंटों ने बस से उतरने वाले मुसाफिरों को घेर लिया। आसपास कई पुलिस वाले भी नजर आ रहे थे। एक तरफ फौजी ट्रक भी खड़ा था। एक गेस्ट हाउस के एजेंट ने हमें भी घेरने की कोशिश की तो हम उसे झड़क कर बस से उतरने वाले सिख जोड़े के पीछे पीछे चलने लगे। मैंने कुछ चुभती हुई नजरें भी अंगूरी और अपनी तरफ उठती हुई महसूस की थी। वो यकीनन सादा पोश थे जो बस से उतरने वाले मुसाफिरों का गहरी नजरों से जायजा ले रहे थे। मैं हरिओम का श्लोक पढ़ता हुआ चलता रहा। अंगूरी भी मेरे साथ साथ चल रही थी। उसने सर पर चुनरी इस तरह ओढ़ रखी थी कि घूंघट सा बन गया था और उसका चेहरा तकरीबन छुप कर रह गया था। वो सिख जोड़ा हमसे तकरीबन 20 गज आगे था। मैंने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। मेरा ख्याल था कि उस सिख को रोककर सरदार प्रीतम सिंह के बारे में दरियाफ्त करूंगा, लेकिन फिर बाजार में और सिखों को देखकर उसे रोकने का इरादा मुलतवी कर दिया। ये एक लंबा सा बाजार था। तकरीबन सारी ही दुकानें खुली हुई थी। बाजार में चहल पहल थी। पुलिस तो थी ही, इधर उधर दो की टोलियों में फौजी भी नजर आ रहे थे। मैंने सामने से आने वाले एक सिख को रोक लिया। सरदार प्रीतम सिंह की हट्टी कहाँ है बालिक? मैंने पूछा। किसी मंदिर का पता पूछो स्वामी जी। प्रीतम सिंह के पास जाकर क्या करना है? उसने कहते हुए कनखियों से अंगूरी की तरफ देखा। जाना तो हमको मंदिर ही है बालिक, मैंने जवाब दिया। सरदार प्रीतम सिंह को एक संदेशा देना है तो फिर ऐसा करो स्वामी जी, उसने कहा। वो सामने जो खंबा नजर आ रहा है ना, उसके हाथ बाएं तरफ मुड़ जाओ। उस तरफ थोड़ा ही आगे दूध दही की एक दुकान है। प्रीतम सिंह दुकान पर ही बैठा होगा। हम आगे चल पड़े और फिर उस सिख के बताए हुए रास्ते पर मुड़ गए। उस तरफ भी दुकानें ही थी, मगर ये बाजार ज्यादा बड़ा नहीं था। उस तरफ घूमते ही मुझे दूध दही की वो दुकान नजर आ गई। वो दुकान ऐसी ही थी जैसे दूध दही की दुकान होनी चाहिए। आगे सड़क के किनारे पर लकड़ी के 2 बेंच बिछे हुए थे जिन पर 3-4 ग्राहक भी बैठे हुए थे। दुकान का थड़ा आगे को निकला हुआ था। उसके साथ ही पत्थरों का बड़ा सा चूल्हा था जिस पर दूध से भरी हुई कढ़ाई रखी हुई थी। दूसरी तरफ 2 बड़ी बड़ी गोल सेनियां रखी हुई थी। एक में बर्फी और दूसरी में जलेबियां थीं जिन पर चांदी के वर्क लगे हुए थे। कढ़ाई और सेनियों के दरमियान चौकी पर एक उधेड़ उम्र का सिख बैठा हुआ था। मौसम में अगरचे खासी खुनकी थी, मगर उसके जिस्म पर फूलदार कपड़े की निक्कर बुनियान के सिवा कुछ नहीं था। सर के बाल भी जोड़ा बनकर एक जाली में कसे हुए थे। उसके सामने एक और चौकी सी थी जिस पर ग्लास और प्याले वगैरह रखे हुए थे। दुकान अंदर से खासी बड़ी थी। 2-3 बेंच अंदर भी पड़े हुए थे, लेकिन अंदर कोई ग्राहक नहीं था। दुकान के पिछले हिस्से पर टाट का एक पर्दा भी टंगा हुआ था। पर्दा आधा हटा हुआ था और उसके दूसरी तरफ भी 2 बेंच नजर आ रहे थे। एक गत्ते पर फैमिली रूम लिखा हुआ था। जी आया नो स्वामी जी, सरदार प्रीतम सिंह दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला। क्या सेवा करूं आपकी स्वामी जी? खट्टी लस्सी मिलेगी सरदार जी, मैंने कदरे आगे झुकते हुए इतने मध्यम लहजे में कहा कि बाहर बेंचों पर बैठे हुए लोग ना सुन सकें। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।